हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अप टू एक्सरसाइज 3.3 एंड वी हैव डिस्कस्ड substitution method, our solution of linear equation by substitution method in detail. So let us see some word problem on substitution method. Word problem देखते हैं। तो students in exercise 3.3 question number 3. So let us read, look on the screen and read question number 3. So what is question number 3? First part. So initially question is form the pair of linear equation. Form the pair of linear equation for the following problems. Some word problems are given and you have to form linear equations and find their solution by substitution method. So students, in this equation it is clearly mentioned that you have to solve the linear equations by substitution method. So you can't use any other method known to you. So you have to use substitution method. So let us see students, first part, the difference between two numbers. Difference between two numbers is 26. It means students, number are, one number is greater and one is smaller. एक नंबर बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो उनका डिफरेंस 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। जो एक नंबर है, क्लियरली स्टूडेंट्स, ग्रेटर नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। तो फाइंड देम यानी फाइंड द नंबर्स। तो आइए स्टूडेंट्स इस सिचुएशन को समझते हैं। So it is given in the question, students, let the numbers are x and y. So we have to take two numbers. So in the form of variables we will take, and x is greater than y. x जो है y से बड़ा है. So according to first condition, what is given in the first condition? The difference between numbers is 26. And students, x minus y equals to 26. This is the first condition. And second condition, students, second condition is the कि फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, यानी लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर। यानी स्टूडेंट, दिस इज लार्जर नंबर, दिस इज एक्स इज ग्रेटर एंड वाई, तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ द वाई, यानी एक्स इक्वल्स टू 3y। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बन गए हैं। आप इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, बट हम ट्रांसपोज नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना है। तो मैंने बताया था, जनरली मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन 1 का यूज करते हैं। यहाँ पर इट इज टू इजी, इक्वेशन 2 का यूज करते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट, सिंपल है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो हम ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो व्हाट विल हैपन? x इक्वल्स टू 3y, यानी 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। समटाइम्स सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वेरी इजी। तो 3y माइनस y स्टूडेंट्स यानी 2y, तो 2y इक्वल्स टू 26। तो क्लियरली स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू 13। सो इफ y इज 13, तो इजिली यू कैन कैलकुलेट स्टूडेंट x। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 बट यू विल गेट x इक्वल्स टू 3 into 30, यानी स्टूडेंट्स यू विल गेट x इक्वल्स टू 39। So it is very simple question, very easy question. You can calculate within minutes. So y equals to 13 and x equals to 39. So what you can check also. You can verify your answer also. So let us verify, students. Difference between these two number is 26. इन दोनों का difference 26 है. And this is clearly 3 times of this number. So students, our numbers will be clearly, our numbers are 39 and 13. Student, 39 and 13. You can also write 13 and 39. तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट्स। इन दिस वे यू कैन सॉल्व फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस मूव टू सेकंड स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो रिकॉल स्टूडेंट्स, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? द टू एंगल्स, द पेयर ऑफ एंगल्स whose total is 180 degree, whose sum is 180 degree, known as supplementary angles. Students, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. जब दो सप्लीमेंट्री एंगल है स्टूडेंट्स, उनमें बड़ा वाला एंगल छोटे से कितना 18 डिग्री ज्यादा है। द लार्जर एंगल इज 18 डिग्री मोर देन द स्मॉलर एंगल। और so let us take students two supplementary angles.
तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि हम दो वेरिएबल सेलेक्ट कैसे करेंगे और क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस को अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू यूटिलाइज द गिवन कंडीशन ऑन द क्वेश्चन। तो लेट अस टेक स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एंगल x एंड एंगल y आर सप्लीमेंट्री, एंगल x एंड एंगल y आर सप्लीमेंट्री। दो एंगल है स्टूडेंट्स, तो ये सप्लीमेंट्री है एंड x इज ग्रेटर देन y। वी हैव टेकन x इज लार्जर एंड y इज स्मॉलर, x बड़ा है और y छोटा है। So according to first condition students, it is knowledge based. You should know what is the definition of supplementary angles. Supplementary angles इनका total 180 डिग्री होता है। तो according to first condition, since x and y are supplementary, their total will be 180 degree. So you can easily frame this first quadratic equation, x plus y equals to 180 degree. The reason behind it, because these two angles are supplementary. नेक्स्ट कंडीशन स्टूडेंट गिवन कि लार्जर एंगल इज 18 ग्रेटर देन स्मॉलर एंगल। तो दिस इज लार्जर एंगल एंड दिस इज स्मॉलर एंगल। तो लार्जर एंगल इज 18 ग्रेटर देन स्मॉलर एंगल। इफ यू एड 18 इन स्मॉलर एंगल, दिस टू विल बी इक्वल। तो सेकंड कंडीशन इस तरह से हो जाएगी स्टूडेंट्स, जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो दो कंडीशन बन गई स्टूडेंट्स। अब इन दोनों कंडीशन को हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो इजी है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 से सॉल्व करना। इक्वेशन 2 का यूज करते हैं 1 में। तो फ्रॉम 2 सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1, 2 से x की वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इजीली है, इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। द वैल्यू ऑफ x क्या है हमको पहले से पता है, तो x की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ x y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स व्हाट यू विल गेट, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। तो सिंपली यू विल गेट 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। तो स्टूडेंट्स 18 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा स्टूडेंट, अगर आप 20 माइनस करते हैं तो 160 बचता, तो 162 बचेगा। सो y विल बी 162/2 यानी स्टूडेंट्स 81 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब y की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, इक्वेशन 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। सो इजी कहाँ से है स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 2 से इजी है। 2 में इजी है तो 2 में इजीली रख देते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y यानी 81 प्लस 18, 81 प्लस 18 स्टूडेंट्स यानी ये हो गया 9, और 8 प्लस 1 अगेन 9, यानी स्टूडेंट्स 99 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 99 और y की वैल्यू आ गई 8, यानी अपना आंसर अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, required supplementary angles x equals to 99 degree and y equals to students 81 degree. So you can cross verify your answer also. देखिए इन दोनों का टोटल, if you add both these, total will be 180, और अगर आप देखेंगे तो बड़ा वाला छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 and 2. So let us move to next part. Let us read question number, third part of question number 3 and try to frame the linear equations. So the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Means 7 bats, the cost of 7 bats and 6 balls is 3,800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls. In second situation, she purchases 3 bats and 5 balls for 1,750. Second condition में students number of bat और number of ball अलग अलग है, तो उसकी cost, the cost of that 3 bats and 5 balls is 1,750. Find the cost of each bat and 1 ball. तो आपको पता करना है स्टूडेंट कि what is the cost of 1 bat and what is the cost of 1 ball. तो स्टूडेंट्स let us take the cost of 1 bat. The cost of 1 bat is x rupees
and the cost of one ball is y rupees. Obviously students in normal condition बैट का कॉस्ट ज्यादा होगा. तो ये स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इक्वेशन फ्रेम करेंगे. अब स्टूडेंट्स आपको नॉर्मल चीजें, छोटी छोटी कॉमन सेंस वाली चीजें पता होनी चाहिए. अगर एक बैट का कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज x रुपीज, तो 7 बैट्स मीन्स 7x, और 6 बॉल्स मतलब 6y हो जाएगा. छोटी सी चीजें छोटे बच्चों जैसे आप समझ सकते हैं. तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स, तो 7 बैट्स यानी 7x हो जाएगा, एंड 6 बॉल्स यानी 6y हो जाएगा, इज 3,800 रुपीज. 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, इनका कॉस्ट कितना है 3,000, यानी 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,800. तो पहला इक्वेशन ये बन जाएगा. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड कंडीशन क्या है, इन सेकेंड कंडीशन द कोच परचेसेज 3 बैट्स यानी 3x स्टूडेंट्स. एक बैट का कितना है x, तो 3 बैट्स 3x, एंड 3 बॉल्स कितनी है 5 बॉल्स. तो एक बॉल का कीमत स्टूडेंट, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज y रुपीज, तो 5 बॉल का कितना हो जाएगा 5y. तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इज 1,750. तो ये दो क्वेश्चन बन गए स्टूडेंट्स. दीज आर 2 वेरी ब्यूटीफुल लीनियर इक्वेशंस एंड यू आर टू सॉल्व दीज 2 लीनियर इक्वेशंस. आपको सॉल्व करना है, और किस मेथड से सॉल्व करना है बच्चों, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, तो किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो हम नॉर्मल एज यूजुअल मेथड फॉलो करते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. तो फ्रॉम 1 we can write students 6y equals to 3800 minus 7x, and or y equals to 3800 minus 7x divided by 6. So let us take this is equation 3. To substitute the value of y in equation 2. 1 से निकाला है ना, अगर 1 से निकाला है, 1 से y की वैल्यू निकाली है तो 2 में रखेंगे. तो substitute y from 3 in 2, 3 से लेकर के 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट्स, यू विल गेट 3x प्लस 5 एंड 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1750. स्टूडेंट्स मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि जब भी इस तरह की फ्रैक्शन बन जाती है, बहुत सारे बच्चे इस सिस्टम पे आके गलत कर देते हैं. यहाँ तक तो सही करते हैं, यहाँ तक सही करते हैं बच्चे, यहाँ पर आके गलत कर देते हैं. गलत नहीं करना, और बड़ी क्वांटिटी से परेशान बिल्कुल नहीं होना है. आपको कॉन्सेप्चुअली सही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. तो इस 6 का एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, या बेहतर ऑप्शन है कि 6 का थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई बाय 6 इन थ्रू आउट द इक्वेशन. तो जब यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 into 3 18x प्लस, इस स्टेप पर जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा. तो 5 3800 माइनस 7x इक्वल्स टू, इस स्टेप में 6 का मल्टीप्लाई कीजिए. तो 10,500. अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18x, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 18x प्लस, इसका मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स 0 0, ये हो गया 19,000 माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों तो क्या हो जाएगा 35x, और इक्वल्स टू क्या है बच्चों, इक्वल्स टू है 10,500. अब इसको इसमें माइनस कर दीजिए तो क्या बचा, ये दीज आर 2 सिमिलर क्वांटिटीज, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया. स्टूडेंट्स हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का एम ही होता है कि 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर ले. तो 2 वेरिएबल कन्वर्टेड इनटू सिंगल वेरिएबल. तो माइनस 17x इक्वल्स टू 10500 माइनस, ये माइनस में आ जाएगा माइनस 19000. तो स्टूडेंट्स माइनस 17x इक्वल्स टू, देखिए इसको माइनस कर दीजिए तो निगेटिव में बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 0 0 5, यहाँ से बचेगा 8500. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो x इक्वल्स टू
8500 डिवाइडेड बाई 17। इफ यू डिवाइड बाई 17 तो x इक्वल्स टू 500। इस टाइप के बड़े क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा घबराना नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 500 आ गई, यानी एक बेड की कीमत कितनी है? 500। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए या इक्वेशन 1, 2, 3 में कहीं भी रख दीजिए, y निकल आएगा। तो 3 पे रखना बहुत आसान है। फ्रॉम 3 तो व्हाट वी विल गेट? y इक्वल्स टू 3800 माइनस 7 इंटू 50, 7 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 6। तो स्टूडेंट्स 30,000 और ये हो गया 3,500, 38,000, 3,500 यानी स्टूडेंट्स 500 नहीं, सॉरी 500 नहीं, 3800 माइनस 3500 अपॉन 6। तो यू विल गेट 300 अपॉन 6 यानी 50। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। सो y की वैल्यू हो गई 50 रुपीज, यानी एक बॉल का कीमत 50 रुपीज और एक बैट का कीमत 500 रुपीज। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस। देखिए आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। A taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for distance covered। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? कि जब भी आप किसी टैक्सी में बैठते हैं तो आप चाहे 1 किलोमीटर ट्रेवल करें और वेदर यू ट्रेवल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यू हैव टू पे फिक्स चार्ज। कुछ फिक्स चार्ज होता है जो आपको पे करना है, एंड आप और जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट डिस्टेंस यू आर टू पे एट द रेट ऑफ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना होगा। तो देखिए ये एक टैक्सी की चार्जेस ऐसे कि कुछ फिक्स चार्ज लगता है और बाकी जितनी आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगता है। अब किसी एक पर्सन ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया एंड ही हैज पेड 105 रुपीज। उसने 105 रुपए पे किए 10 किलोमीटर के। तो यानी स्टूडेंट 10 किलोमीटर के लिए उसने पर किलोमीटर का चार्ज भी दिया होगा और फिक्स चार्ज भी दिया होगा। इसी तरह से अगर वही व्यक्ति 15 किलोमीटर ट्रेवल करता तो ही हैज टू पे 155 रुपीज। तो उसको 155 रुपीज पे करने पड़ते। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज? फिक्स चार्ज कितना है एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है ये बताना है बच्चों। और इसके बाद ये बताना है एक चीज और बतानी है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे। स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू सॉल्व लास्ट पार्ट को बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करता तो कितना चार्ज पे करना पड़ता? देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज इज x किलोमीटर एंड पर किलोमीटर चार्ज इज y रुपीज। पर किलोमीटर चार्ज इज y रुपीज। तो फर्स्ट कंडीशन इज फॉर 10 किलोमीटर। तो फॉर 10 किलोमीटर, तो स्टूडेंट्स फॉर 10 किलोमीटर तो ही हैज टू पे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा प्लस y रुपए, यानी सपोज कीजिए स्टूडेंट्स 2 रुपए पर किलोमीटर। तो y रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उसको 10 रुपए का देना होगा। अगर 2 रुपए पर किलोमीटर होता तो 20 रुपए देना होता, और y रुपए पर किलोमीटर है तो पर किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 10y। x प्लस 10y इक्वल्स टू फॉर 10 किलोमीटर ही पेज 105 रुपीज। ही पेज 105 रुपीज। तो पहला इक्वेशन ये बन गया 10 किलोमीटर। सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 15 किलोमीटर तो कितना देना होगा? तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही बच्चों, फिक्स चार्ज। और 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपीज, द चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर इज y रुपीज, द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर इज y रुपीज, एंड फॉर 15 किलोमीटर 15y इक्वल्स टू, सो व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट्स? 155। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, बट इन दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स यू विल सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय योरसेल्फ। स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 10 मिल जाएगी और y की वैल्यू 5 मिल जाएगी।
x की वैल्यू 5 मिलेगी और y की वैल्यू 10 मिलेगी। ये आपको आंसर मिल जाएगा, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स इसमें एक पार्ट और पूछा था, लास्ट पार्ट, कि व्हाट अमाउंट अ पर्सन हैव टू पे इफ ही और शी ट्रेवल्स 25 किलोमीटर। तो लास्ट में स्टूडेंट क्या करेंगे, फॉर 25 किलोमीटर्स, फॉर 25 किलोमीटर्स। तो 25 किलोमीटर के लिए देखिए स्टूडेंट्स कितना होगा, टोटल पेमेंट x रुपीज फिक्स चार्ज देना होगा प्लस 25 y रुपीज, इतना देना होगा। और 20 किलोमीटर इतना चार्ज देना होगा, और 20 किलोमीटर चार्ज विल बी कितना स्टूडेंट्स, फिक्स चार्ज होगा और 25 किलोमीटर है तो इतना होगा। यानी अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, यानी 5 प्लस 25 इंटू 10, यानी स्टूडेंट्स 5 प्लस 250, तो उसको कितना देना होगा, 255 रुपीज। तो ये क्वेश्चन, ये पार्ट करना मत भूले, बहुत सारे बच्चे ये वाला पार्ट भूल जाते हैं। ये बीच का मैंने स्किप कर दिया है, आप लोग, मैंने इतने सारे मेथड बता दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, लेकिन आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट आंसर इजीली। तो ये 4th पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। आइए 5th पार्ट पर फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट क्या है, बहुत इजीली से समझिएगा। फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, यू नो फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स देखिए, फ्रैक्शन में सपोज कर लेता हूं, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसी तरीके से आप बनाएंगे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहली कंडीशन है 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहली कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन ये स्टूडेंट्स न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों में 2 ऐड कर दीजिए। 2 is added to numerator and denominator, then the fraction will be 9 upon 11। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, 9 upon 11। देखिए पहला एक क्वेश्चन बन गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, इसका इधर और इसका इधर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर होगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y और प्लस 18। सो स्टूडेंट्स यू विल गेट 11x, इस 9y को इधर ले आइए, माइनस 9y इक्वल्स टू 18 और इस 22 को इधर ले जाइए, माइनस 22। यानी बच्चों पहला इक्वेशन बन जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। देखिए प्यारा सा इक्वेशन बन गया। तो पहले ये कर लेंगे, अब दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज सेकेंड कंडीशन? तो स्टूडेंट्स यू कैन सी सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों में सेम चीज ऐड करना है। अगर आप 3 ऐड करते, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्रैक्शन है, ये आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, ये 3 इज एडेड, अगर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। If you add 3 in numerator and denominator both, तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगी। तो बच्चों इसका आपको क्या करना है, अब फिर से सिंप्लीफाई करना है। तो सीधे से मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। इसको इधर ले आइए बच्चों, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 18 माइनस 15, यानी 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। तो ये बच्चों इक्वेशन 2 बन गया। अब मैंने दोनों इक्वेशन बना दिए हैं, अब इनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। या चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालते हैं, या इक्वेशन 2, जिससे आपको मर्जी, जिससे आपको इजी लगे।
तो यहाँ से मुझे x, यहाँ से इक्वेशन 1 से सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1। तो देखिए अगर y की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो y को उस साइड ले जाना पड़ेगा और 4 को इस साइड लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, और पलट करके लिखना होगा। तो 11x प्लस 4 इक्वल्स टू 9y हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9। यही मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशन 1 से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो ज्यादातर मैं y की निकालता हूं, आप चाहे तो x की भी निकाल सकते हैं। सो y इक्वल्स टू ये आ गया। अब ये y की वैल्यू अगर 1 से निकाली है तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 में रख देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 2। ध्यान से देखिए, जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे तो 6x माइनस 5 और y की जगह पर लिखेंगे आप 11x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू -3। अब यही सिचुएशन यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन आपका ये फ्रैक्शन बन जाता है, फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है। इसकी बेस्ट ट्रिक क्या है कि मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर इन थ्रू आउट द इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई बाई 9, मल्टीप्लाई बाई 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो ये 9 इंटू 6 54, 54x माइनस ये 9 से, और यहाँ 9 मल्टीप्लाई होगा तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 11x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा 9 से 27, ये हो जाएगा माइनस 55x माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 27। देखिए इन दोनों में अगर आप माइनस करें तो माइनस का x बचेगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू ये माइनस 27 और ये 20 उस साइड जाएगा तो प्लस 20, यानी स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू -7, माइनस एक्स इक्वल्स तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 7 आ गया। x की प्यारी सी वैल्यू निकल आई। अब ये यहाँ से यहाँ तक का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इक्वेशन बना लिए, आपको आने लगा, स्टूडेंट्स आपको नहीं आ रहा है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। ये सारा स्टेप्स आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो x इक्वल्स टू 7 आ गया। अब x की वैल्यू आप 3 में रख दीजिए, तो फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू 11 इंटू 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9। तो देखिए y इक्वल्स टू 77 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9, यानी 81 डिवाइडेड बाई 9, यानी y इक्वल्स टू 9 आ गया। अब बहुत सारे बच्चे ये आंसर लिख देते हैं, दिस इज नॉट आंसर। आपसे पूछा गया था फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए बच्चों, लेट अस सी व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन विल बी स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, यानी 7/9। तो ये आपका आंसर होगा। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप क्रॉस चेक कर लेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं। क्या बोला था बच्चों कि अगर दोनों में 2 प्लस कर दे तो 9/11 हो जाएगा। देखिए 2 प्लस कर दीजिए तो 9/11 हो जाएगा, और अगर 3 प्लस कर देंगे तो 5/6 हो जाएगा। आप 3 प्लस करके देखिए, 3 प्लस करेंगे तो ये ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे स्टूडेंट 12 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर 5/6 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इसका 6 पार्ट देख लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ 6 पार्ट के, और इसके बाद इसको खत्म करते हैं। स्क्रीन एंड रीड क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स 6 पार्ट। 6th पार्ट इज, तो इट इज एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो इन एज रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स यू आर टू कंसीडर प्रेजेंट एज। आपको पहले प्रेजेंट एज सपोज करना है। तो 5 year hence, 5 year hence means after 5 years, the age of Jacob will be 3 times that of his son. Means Jacob का एज अपने सन के एज का 3 times होगा। 3 times means 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके सन का जो भी एज है, the age of his son is if x year, तो Jacob का उसका 3 times हो जाएगा। And students, in this type of question, generally 2 conditions are given. Second condition is 5 years ago. 5 years ago means
5 years before from the present आज से 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 times ऑफ हिज सन। जैकब का एज अपने सन का 7 times था। तो इस कंडीशन को कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन हो तो प्रेजेंट एज पर फोकस करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years and present age of his son is y years. So what will happen? In first condition is after 5 years. After 5 years means 5 years from hence. So after 5 years, Jacob will be x plus 5 and his son will be y plus 5. 5 साल बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आपकी एज एट प्रेजेंट टाइम आपकी एज 15 years है तो 5 साल बाद आप 20 के हो जाएंगे, यानी प्लस 5 हो जाएगा। So Jacob will be x plus 5 and his son will be y plus 5. स्टूडेंट ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ जैकब का एज बढ़े और उसके सन का एज नहीं बढ़े, तो दोनों का एज बढ़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जैकब्स एज विल बी 3 times ऑफ हिज सन, यानी x plus y इक्वल्स टू 3 into y plus 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, x plus 5 इक्वल्स टू 3y plus 15। 3y को इधर ले आएंगे, x प्लस या 3y को उधर ही रख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस 3y इक्वल्स टू ये 5 उधर जाएगा तो 10 बचेगा। तो दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। नाउ लेट अस सी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, 5 years अगो, 5 years अगो यानी आज से 5 साल पहले। आज अगर आपकी एज 15 साल है तो आज से 5 साल पहले आप 10 साल के रहे होंगे, यानी -5। तो 5 years ago Jacob will be x minus 5, Jacob का x है तो his age will be x minus 5 and his son will be y minus 5। and according to the condition given in the question is कि Jacob का एज अपने सन का 7 times होगा, यानी Jacob equals to 7 into his son। तो Jacob's age is 7 times of his son, यानी x minus y equals to 7 times of his son's age। मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, x minus 5 equals to 7y माइनस 35। 7y को इधर ले लीजिए, x माइनस 7y इक्वल्स टू 5 को उधर ले जाएंगे प्लस 5 हो जाएगा तो -30। तो स्टूडेंट्स दो इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करके बता दे रहा हूं। तो एडिंग x का कोफिशिएंट सेम है ना, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है स्टूडेंट्स तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, जैसी आपकी मर्जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधे सीधे। तो 1 minus 2 ही कर देता हूं मैं, 1 minus 2 यानी 1 में से 2 माइनस कर देते हैं। तो x minus 3y इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस 7y इक्वल्स टू -30। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल। 4y इक्वल्स टू 40, देन स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू 10। तो y का वैल्यू 10 आ गया। y का वैल्यू आप 1 या 2 कहीं पर भी रख दीजिए, तो मैं 1 में रख देता हूँ, फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10, यानी x इक्वल्स टू 10 प्लस 30, यानी बच्चों x इक्वल्स टू हो जाएगा 40। इसका सीधा से सीधा मतलब है कि जैकब का प्रेजेंट एज 40 इयर्स है और उसके सन का प्रेजेंट एज, आप लास्ट लाइन में आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हाँ बच्चों, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है सब्स्टिट्यूशन में लिख करके आ जाए, सब्स्टिट्यूशन लिखा ही है इसमें, तो आप ये खुद से कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.4।